IMF کے دباؤ پر تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ ٹیکس وصولیوں میں 271 ارب روپے اضافے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی ہر ماہ 4 روپے بڑھا کر فی لیٹر 30 روپے تک لے جائی جائے گی۔ بجلی مزید مہنگی ہونے کا بھی امکان ہے۔ IMF کے آگے سر تسلیم خم، عوام پر پھوٹے گا منی بجٹ کا بم۔ وزارت خزانہ کا تیار کردہ منی بجٹ آج کابینہ کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق ترمیمی فنانس بل میں 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہوگی۔ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 271 ارب روپے بڑھا کر 6000 ارب تک لے جایا جائے گا۔ پیٹرولیم لیوی بھی ہر ماہ 4 روپے بڑھائی جائے گی۔ فی لیٹر لیوی کو 30 روپے تک لے جانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں، ترقیاتی بجٹ میں بھی 200 ارب روپے کا کٹ لگے گا۔ بجلی مزید مہنگی کرنے کی بھی تجویز منی بجٹ میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے روزمرہ استعمال کی اشیاء جیسے موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر ٹیکس کی چھوٹ ختم ہوگی۔ ڈبوں میں پیک کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر بھی پابندی کی تجویز رکھی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ منی بجٹ میں 800 سی سی سے بڑی گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ لگژری گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کاسمیٹکس کے سامان پر بھی ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ اجلاس میں پرانے کرنسی نوٹس کی تبدیلی کے لیے وقت بڑھانے کا بھی فیصلہ کیے جانے کا امکان ہے۔ صنعت و پیداوار سے متعلق رپورٹ اور شوگر سیکٹر میں اصلاحات پر رپورٹس پیش کی جائے۔ اسٹیٹ بینک صرف 24 روز بعد ایک بار پھر مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں 1% تک اضافے کا خدشہ ہے۔ صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ قرض مہنگا ہونے سے صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری متاثر ہوگی۔ ایک ماہ میں دوسری بار چلے گی شرح سود میں اضافے کی تلوار۔ اسٹیٹ بینک آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق پالیسی ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا امکان ہے۔ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ میں اضافے سے قرض مزید بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں کمی ہوگی۔ اجلاس میں آپ کے انٹرسٹ ریٹس کو مزید بڑھایا جائے گا۔ سینٹرل بینک یہ کام اس لیے کر رہی ہے کیونکہ انٹرسٹ ریٹس کی بڑھنے سے آپ کی انفلیشن کو کرب کرنا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ کی بورنگ کاسٹ بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے رکنا شروع ہو جائیں گی اور غالباً گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاروں نے بھی ممکنہ اضافے کو تکلیف دہ صورتحال قرار دے دیا۔ آج دوبارہ مانیٹری پالیسی کا اعلان ہو رہا ہے۔ انویسٹرز کو، کیپٹل مارکیٹ کو یہ وسوسہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف بڑھنے کا ہے، جو کیپٹل مارکیٹ کے لیے نہیں، کافی بڑی بڑی انڈسٹریوں کے لیے بھی تکلیف ہے۔ آج بھی اضافہ کیا گیا تو انڈسٹریل گروتھ جو ہے وہ بالکل رک جائے گی اور اس سے جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ اور ساری ایکٹیویٹیز کو جو ہے بہت بڑا جو ہے دھچکا ملے گا۔ اسٹیٹ بینک نے صرف 24 روز قبل 19 نومبر کو بنیادی شرح سود میں 1.5% اضافہ کیا تھا، جس کے بعد شرح سود 8.75% ہو گئی تھی۔ بات یہی نہیں رکے گی، اگلے ماہ یعنی جنوری میں بھی ایک اور مانیٹری پالیسی۔ اسٹیٹ بینک آج پھر شرح سود بڑھانے جا رہا ہے۔ عوام کو مہنگائی کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا اسے تبدیلی کہتے ہیں؟ حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت پر تنقید۔ بیان میں مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ حکومت مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈوب چکی ہے۔ 3 سال میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکی۔ حکومت کی ناقص کارکردگی نے مایوس کیا۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اب گیس کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ بیساکھیاں ہٹتے ہی حکومت ایک دن میں گر جائے گی۔ بیساکھیوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ ملک کا نظام جمہوری اقدار پر قائم نہیں ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے لیے جمہوری نظام ضروری ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت پر وار، کہا اسٹیٹ بینک آزاد ہے، جو کرے گا بھگتنا پڑے گا۔ یہ حکومت بیساکھیوں پر ہے، یہ بیساکھیاں اب ہٹانے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہاتھ اٹھایا جائے گا ایک دن بھی حکومت نہیں رہ سکتی۔ تحریک عدم اعتماد وہاں پر آتی ہے جہاں نظام جمہوری اقدار اور آئین کے مطابق ہو۔ ہمارا ملک کا نظام نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آج آزاد ہے، جو وہ کرے گا آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ آج آدھی رہ گئی ہے۔ اعلیٰ عدالتیں
जो एक अकामे की फीस न लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश बैठी। आज जरूरत है अदलिया को कि अवाम का एतमाद बहाल करें। जिस मुल्क में अवाम का एतमाद अदलिया से उठ जाए वो निजाम नहीं चलता। मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रहे हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल है, चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है। 18 वजीर मुशीर SAPM मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है, जिनका काम सिर्फ गाली निकालना है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियां कर रही है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली को खत, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वजीर आला सिंध ने ऐवान में काबिल एतराज़ अंदाज में बात की। हलीम आदिल शेख ने मजीद कहा कि सिंध का नया बल्दियाती कानून आइन के आर्टिकल 140A से मुतसादिम है। अवाम ने नए बल्दियाती कानून को मुस्तरद कर दिया। कोई एक शहर ऐसा बता दें जहां सिंध जैसा बल्दियाती निजाम राइज हो। खुर्रम शेर जमान का बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह को चैलेंज। कहा, बिलावल हमारा मुंह क्या काला करेंगे, उनके तो अपने करतूत काले हैं। जिस मेयर के पास कोई इख्तियार ना हो वो शहर की क्या खिदमत करेगा। मुराद अली शाह ने सिंध को अलग करने की बात की, वो अच्छी तरह जान लें ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। मैं चैलेंज करता हूं इस सूबे के नालायकी आला को, मैं चैलेंज करता हूं बिलावल जरदारी को, इनकी पूरी क़यादत को, कि आप पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मिसाल दे दें जहां पर ऐसा कानून हो। इनका लीडर कहता है कि तुम लोगों का मुंह काला होगा। अरे भाई, आपका मुंह तो काला ऑलरेडी, आप हमारा मुंह क्या काला करेंगे। काले करतूत तो आपके हैं। आपका जो मेयर आएगा वो लंगड़ा लूला मेयर आएगा। 4 साल जो है वो यही रोने धोने में गुजार देगा कि ना मेरे पास इख्तियारात हैं, ना मेरे पास वसाइल हैं। वजीर आला जो कि नलायकी आला, वो सिंध असेंबली में कहता है कि तुम लोग माइनॉरिटी हो। कहता है हमें मजबूर ना करो, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। मुराद अली शाह, तुमने अगर जुर्रत भी करी सिंध को पाकिस्तान से अलग करने की ऐसी सोच भी अपने दिमाग में लेकर आए, हम तुम्हें छोड़। कराची से आपको खबर देंगे जहां न्यू कराची में बीच सड़क पर छुरियों के वार करके लड़की को कत्ल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए मोहल्ले न्यू कराची का ये इलाका है, जो सेक्टर बताया जा रहा है। छुरियों के वार से जो है वो लड़की को जख्मी किया। लड़की जो है वो दौराने जब रास्ते में अस्पताल लेके जा रहे थे वो जो है वो दम तोड़ गई। जबकि SSC सेंट्रल के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि छुरियों के वार से खातून की जो हिरासत का वाक़या है उसको कत्ल की वारदात में मकतूला का पड़ोसी जो है वो मुलविस है। SSC सेंट्रल के मुताबिक ये भी कहा गया कि कत्ल करने वाला मुलजिम फरार है। पुलिस ने 3 भाइयों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मकतूला और मुलजिम के अहल खाना में पहले भी लड़ाई झगड़ा होता रहा है। वाक़े में से मुतालिक मजीद मालूमात है वो हासिल जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। उधर MQM भी इस बिल पर सीखा है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि APC में तमाम जमातों ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार दिया है। वज़ीर आला सिंध मुतनाज़ा रिमार्क्स पर मुआफी मांगे और बताएं सिंधु देश के नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज नहीं किए गए। जब नैब की रस्सी खिंचती है तब ये सिंध की बात करते हैं। हमें अक़लियत कहना सिंध को अलहदा करने की साजिश है। उन्होंने वज़ीर आज़म से सिंध के फंड्स रोकने की दरख्वास्त भी कर दी। ये पीपल्स पार्टी का वडेरा गैंग जो है ये 4 साल मजे करता रहा, अपने भांजे भतीजों को चेयरमैन और मेयर मुंतखब करवा के और सिंध के अवाम पे जुल्म करते रहे। हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिंध के तमाम लोगों ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये बिलावल साहब ने जो कहा है कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, तो ये सिंध के वोटर्स, सिंध की मुंतखब नुमाइंदा जमातें, उनके रहनुमाओं और उनके वोटर्स की भी दिल आजारी की। ये वही पाकिस्तान ना खपे की आवाज एक बार फिर आई और हम समझते हैं, हम इसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। मुराद अली शाह साहब को इस पर माफी मांगनी चाहिए सिंध के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम से और बानियाने पाकिस्तान से। बल्कि पूरे सिंध में मुखालफत कर दी तो आपने पाकिस्तान को ललकार दिया। आपके बिल की तमाम जमातों ने, तमाम कौमियतों ने हिमायत नहीं की। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ताकत के नशे में फिरौन बन गई है। सिंधियों को जरदारी और PP के चंगुल से निकालेंगे। सब ये जान लें कराची से कश्मीर तक पूरा सिंध हमारा है। बिलावल हमें ना डराएं, उनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं होंगे।
कराची से कश्मीर तक सब मेरे हैं। हम सिंधियों को इस जरदारी के चुंगल से आजाद कराएंगे, उसकी नस्लों की चुंगल से आजाद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, इस पीपल्स पार्टी के चुंगल से आजाद कराएंगे। आज इस शहर में अगर कोई किरदार वाली लीडरशिप होती तो इस शहर के सेंसस को सही करवाती असेंबलियों में बैठे हुए, और आज पता चल जाता कौन असलियत में कौन अक्सरियत में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एक तो आप जब धमकी देते हैं ना, हमें हंसी आ जाती है, आप पर सूट नहीं करती। हमने जिस दिन ये सोच लिया कि अब हमें जो है वो खुदकुशी नहीं करनी है कि एक एक करके आओ जरा मरने से पहले इस हालात में पहुंचाने वालों को इनकी फिरौनियत का खात्मा करके मरे, तो कोई जगह बचेगी नहीं आपके लिए। कोई आप अपनी जो आपने भर्तियां की ना पुलिस में। जमात इस्लामी ने भी 19 दिसंबर को कराची बचाओ मार्च का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं 1972 का लिसानी बिल लाने वाले दोबारा लिसानियत का बीज बो चुके हैं। लिसानियत परवान चढ़ाने वाले बिलावल और वजीर आला सिंध अवाम से मुआफी मांगे। वडेरों के मजमुए का दूसरा नाम पीपल्स पार्टी है। बल्दियाती कानून को डंके की चोट पर काला कानून कहते हैं। तो साहब ने तो ये कहा कि जो ढाका जाएगा की टांगे तोड़ देंगे, ये उनकी जमहूरियत थी। और फिर उसके बाद इन्होंने मुल्क को आधा कर दिया, जमहूरियत का भी कत्ल किया और मुल्क को भी तकसीम कर दिया। कि वही पीपल्स पार्टी है जिसने सन 72 में लिसानी बिल पेश किया और उससे फसादात की एक आग लग गई और पूरे सिंध में लोग तकसीम होना शुरू हो गए। और पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या है सिवाय वडेरों के मजमूए का, जागीरदारों के मजमूए का। ये वडेरे और जागीरदार देही अवाम का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं और शहरी अवाम का भी इस्तेहसाल कर रहे हैं। ये काला कानून है और इस आइन को स्याह करने की एक साजिश है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है। कहते हैं कि ये अक़लियत में अपोजिशन को या सिंध के अवाम को असल में वक़ीयत में कहते हैं। बिलावल भुट्टो भी और मुराद अली शाह भी सिंध के अवाम से माफी मांगे इस लिसानियत के फैलाने पर, नफरतों को परवान चढ़ाने पर, इन तासुबात को परवान चढ़ाने पर।